Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes students, today we are back with practical problem number 2 of course 11th Commerce Bookkeeping and Accountancy, chapter number 3 जो है journal. Practical problem number 1 already हमने discuss किया है, kindly check in the playlist. And today we will discuss second problem, we will journalize it. Already मैंने आपके लिए solve किया है, कैसे किया है, कैसे हमें लिखना है, एवरीथिंग इज़ देयर. सो पूरा वीडियो अंत तक देखना सो दैट इट विल रियली हेल्प यू टू ट्रांजैक्ट दिस, यू नो, आई एम टू से टू जर्नलाइज दिस ट्रांजैक्शंस. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. बिफोर गोइंग अहेड, न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड आउट द प्रॉब्लम फॉर यू. सेकेंड है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गजानन 2018. ओके, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री है, वी विल जस्ट राइट हियर, या ऑफ कोर्स May 3rd purchase goods for rupees 90,000 and amount paid by bank directly. स्टूडेंट्स यहाँ पे परचेजेस हुआ है, ऑब्वियसली कॉमनली गुड्स बोला है तो डेफिनेटली हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे. व्हाट कम्स इन, remember goods is a real account, debit what comes in, credit what goes out. And this amount is not paid by cash but it is paid by bank directly. तो obvious है purchases account debit to बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. इन द बुक्स ऑफ गजानन लिखना है आपको जर्नल एंट्रीज. दिस इज द फॉर्मेट विच आई ऑलवेज टेल यू इन ईच एंड एवरी वीडियो. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज आपको लिखना है. May 3rd first entry purchases account debit to bank account 90,000. narration लिखना मत भूलना. being purchase goods and paid by bank directly is the narration. very simple है, purchases हुआ है and it is paid by bank, so that's why the entry will be purchases account debit to bank account credit. how much? 90,000 debit, 90,000 credit. चलो, the first transaction is जर्नलाइज. सो हम उसको एक एरो दिखा देंगे यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डन. ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू द सेकेंड. May 7th है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000. तो यहाँ पर गुड्स किसको सेल हुए हैं? सतीश को. सतीश इज़ अ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. लेकिन यहाँ पर सतीश रिसीव कर रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू डेबिट सतीश इज अकाउंट डेबिट टू sold goods. तो sales have taken place, so Satish's account debit to sales account credit 30,000. let's see it in the format. transaction number 2, that is May 7th. Satish's account debit 30,000 amount to sales account credit 30,000 in the credit amount, and narration is being sold goods to Satish on credit. ठीक है, so the entry is very clear here. Satish's account debit to sales account credit. ठीक है, let's put the arrow mark here, that means we have finished the May 7th वाला entry, that is the second entry. ठीक है, let's go to the third entry quickly. paid for postage rupees 10,000. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं पोस्टेज के लिए, तो पोस्टेज ऑब्वियसली इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेज, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. आप पे कर रहे हो तो डेबिट करो एक्सपेंसेस को, and you are paying cash, so what is going out of your hand? Cash. तो cash account will be credited. cash is a real account, credit what goes out. स्टूडेंट्स, हमने ये सारी डिस्कशन, हमने गोल्डन रूल सब तक तो बहुत सारा रिवाइज किया है. आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल्सो ओरली डिस्कसिंग, हियरिंग, आई मीन टू से लिसनिंग टू मी एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, तो 9th May में पेड फॉर पोस्टेज है, तो यहाँ एंट्री होगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट, बिकॉज postage is an expense, postage is a nominal account, debit the expense, so postage account debit to, you are paying it, cash is going out of your hand, so postage account debit to cash account. 9th May वाला entry, let's go in the format. postage account debit हो गया है, debit amount में 10,000 to cash account credit, credit amount में 10,000, narration being paid for postages. ठीक है, so this is how you are going to journalize May 9th entry. So this is also done. Let's show the arrow here. Okay, correct. So May 9th entry is done. Let's go to the next. 12th May paid for wages rupees 15,000. Again students wages pay हुए हैं
अब ऑब्वियस है, पोस्टेज पे किया था तो हमने पोस्टेज अकाउंट डेबिट किया था, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ वेजेस पे हो रहे हैं तो एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाथ से पैसे जा रहे, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर May 12th? Wages account debit to cash account credit. Let's go to the format. May 12th, wages account debit 15,000 in the debit column to cash account credit in the credit column 15,000 being paid for wages. As simple as that. Very simple entry, students, and just follow the rules, just follow the golden rules. आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर सकते हो, मॉडर्न अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें या रूल के हिसाब से देखें, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जर्नलाइज द एंट्री. ठीक है, लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट, दैट इज 15th May. यू कैन सी हो रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती. तो यू आर रिसीविंग चेक. तो जब चेक का नाम आता है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली हमारा बैंक अकाउंट कम्स इनटू पिक्चर. तो कैश होता तो कैश डेबिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम चेक रिसीव करें तो हम यहाँ पे बैंक को डेबिट करेंगे टू सती अकाउंट, बिकॉज यू आर रिसीविंग द चेक फ्रॉम सती. सती इज द गिवर. गोल्डन रूल अगेन, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ 15th May का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीज अकाउंट क्रेडिट. लेट्स सी इन द फॉर्मेट. May 15th, bank account debit 30,000 in the debit column to Sati's account credit in the credit column being received check from Sati. So this is how you are going to journalize the entry, that is bank account debit to Sati's account credit. Let's show the arrow here also. It indicates that we have journalized the entry. ठीक है, let's quickly go to the next. वेरी सिंपल एंट्रीज. जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये बहुत ही हमारी दिमाग में फिक्स हो जाएगा. ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, लेकिन हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे. 21st May रिसीव्ड डिविडेंड ₹5,000. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रिसीव करते हैं डिविडेंड तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, ऑब्वियसली क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. तो रिसीविंग मनी मतलब डिविडेंड आप रिसीव कर रहे हो तो क्या होगा एंट्री, व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डिविडेंड. तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, सो डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. लेकिन जब हम डिविडेंड रिसीव करते हैं तो डिविडेंड, अब तो हमें सब पता है कि शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, और अब तो डीमैट अकाउंट ओपन होता है, तो जो भी आप डिविडेंड रिसीव करते हो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाता है. तो बैंक अकाउंट भी यहाँ डेबिट हो सकता है. तो मैंने यहाँ पर एक स्लैश डाला है. मोस्ट ऑफ द टाइम कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड होता है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दोनों ट्राई किया है. आप यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 5,000 द डेबिट अमाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली राइट नाउ अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आपके बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट में आ जाते हैं ना आपके जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो दैट्स वाई कैन राइट योर बैंक अकाउंट डेबिट. सो इसीलिए मैंने दोनों लिखा है. सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिकली राइट इट, यू कैन राइट इट बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर हम जो रिसीव करते हैं तब आप कैश अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो, बिकॉज व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, करेक्ट. तो कैश अकाउंट और स्लैश मैंने बैंक लिखा है. यू कैन राइट एनी वन स्टूडेंट्स. डेबिट ₹5,000. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल राइट कैश अकाउंट ऑल्सो, बट यहाँ पर मैंने दोनों लगाने की कोशिश की है, क्योंकि अभी अगर हम डीमैट अकाउंट को देखें तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट लिखा है. अमाउंट कॉलम में 5,000, क्रेडिट कॉलम में भी 5,000 being received dividend. ठीक है, so this is how you have to write the narration. So let's show the arrow mark here also. Yes, May 25th का हो गया है. Okay, so this is how you have to journalize this entry here. Let's quickly go to the next. Next entry is परचेज्ड लैपटॉप ऑफ ₹40,000 एंड पेड बाय चेक. तो परचेज क्या हुआ है, स्पेसिफिकली दिया है, लैपटॉप ही खरीदा है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड पेड बाय चेक, तो पैसे कैश से नहीं चेक से कहते, मतलब बैंक केम इनटू पिक्चर. सो व्हाट विल बी द एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 40,000. 25th May का एंट्री है ये. जल्दी फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने May 25th लिखा है. लैपटॉप अकाउंट डेबिट 40,000 इन द डेबिट कॉलम
to bank account credit in the credit column 40,000. And what is the narration? Don't forget to write the narration. It's very very important. Being purchased laptop and paid through check. ठीक है? So this is how you are going to write it. Let's quickly show it in the form of arrow so that we are done with the May 25th transaction. ठीक है? Let's quickly go to the next transaction students. May 25th का हो गया है. 28th के पास चलते हैं. Deposited cash ₹10,000 into State Bank of India. डेफिनेटली आपने डिपॉजिट किया कि यहाँ पे कहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली रिसीवर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन आपने डिपॉजिट किया मतलब पैसे आपके हाथ से चले गए. सो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक अकाउंट डेबिट भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर SBI मेंशन किया है. तो चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं मैंने एंट्री कैसे पास की है. वैसे आप लिख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट अमाउंट में 10,000. एंड व्हाट विल बी द एंट्री? आई एम टू से नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. ठीक है? दिस इज अ वेरी सिंपल वन. 1 minute. I'll just take the arrow from there. One second. Okay, state bank वाला हमारा हो चुका है. So I'll just show it in the form of arrow here. Let's go to the last entry children quickly and finish this practical problem number 2. Purchased goods ₹40,000 and paid by RTGS. Students, RTGS again एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन है जहाँ से आप ट्रांसफ़र करते हो फंड्स को. ओके, तो पे कैसे किया है? RTGS से. तो ऑब्वियस है परचेज गुड्स है, कॉमनली गुड्स दिया है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बिकॉज दे आर पेइंग बाय RTGS विच इज़ one of the ways of making the payment through bank, right? Immediately depends on their different aspects. So what is the entry here? You can see May 31st परचेजेस अकाउंट डेबिट हो चुका है. डेबिट अमाउंट में 40,000 टू बैंक अकाउंट में RTGS से पे किया है ना, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट अमाउंट में 40,000. एंड व्हाट इज द नरेशन? बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय RTGS. ठीक है? After doing all this students, the next thing which you have to, I'll just put this arrow here. Yes, we are done with the last transaction. It's looking quite very clear that we finished with all the transactions. Then you have to also total it. डेबिट और क्रेडिट को टोटल आपको दिखाना है, तो टोटल मैंने यहाँ लिखा है पर्टिकुलर्स में. डेबिट का टोटल आपको मिलता है 2,70,000. ऑब्वियसली डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम ही रहेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड and solve this problem very very clearly, so that it will help you to score really good marks. ठीक है? So I'll just show you one more glance of all the journal entries. Okay, and our total. ठीक है? So that's it children in this video. I hope you will find the video useful. Keep studying, keep revising. Thank you so much. We'll be coming with more practical problem solutions. Till then, stay tuned to Commerce Tube. Thank you so much.